पहला 1 करोड़ रुपए अर्न करने के लिए ये नहीं जानना कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना। तभी आपका पहला 1 करोड़ रुपए इजीली बिल्कुल। अचीव हो पाएगा। तो welcome Neeraj, welcome Nishant to Money with DD. I am so excited about this video with you talking about all things money. I want to get straight into the topic, which is, say the working class, a working professional is making about 5 to 10 lakh rupees in annual income, and he aspires to make his first 1 crore in investments. How does can he even do this? It's possible, obviously. Firstly, before I go into the details, thank you for inviting us. So, I started my journey, before I qualified as a chartered accountant. When I started with my internship, my first monthly income was 1,500 rupees per month, right? From there, I went on, to a salary of much more than 30 lakh rupees in a year. So it's possible I was able to do it, to be very honest, and but a lot of factors that need to be considered when you are doing this. Okay, pehle to you need to be really frugal. Okay, frugality is one thing. Second, are you taking care of your basics in personal finance, right? What are the basics? Health insurance hai ya nahi hai? Term insurance hai ya nahi hai? So because if you end up in a hospital and the bill is say 5 to 10 lakh rupees, your 2-3 years of savings will get wiped out. पहले रिस्क को कवर कर लो, उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंड देन फ्रुगैलिटी, फोकसिंग ऑन योर वर्क, ट्राई टू थिंक कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई income every year by 30-40%. So in the first few years, my salary went up by almost more than 50% every year. Okay, so that was the whole goal कि सैलरी बढ़ाना है. सैलरी बढ़ेगा तो अपने आप सेविंग्स रेट बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा, राइट? क्योंकि खर्चे तो लिमिटेड है. So that's what got me started. And another thing that helped, I wouldn't say helped me, but another thing that happened at that time when I was, going to write my CA final exams, my dad passed away. So then all the responsibility of the family came on me. So then I got more into personal finance. कि exactly क्या करना है, कैसे करना है. But before even getting into the details, I always knew कि पैसा तो सेव करना है. तो चाहे वो बैंक में सेव हो, सेव करना है मुझे पैसा, right? Because returns don't really matter. उस समय मैं even if I put in say 5 lakh rupees in equity mutual fund or in stocks, I make 10% extra, it's not going to change my life, right? Yeah. Nishant, you're the chief goal planner, right, at Holistic Wealth. I absolutely love that title. मुझे वो बहुत पसंद आया जब मैंने देखा, right? I wish सब लोग गोल प्लानिंग करें. तो अगर ऐसा कोई आदमी है जिसका 10-15 लाख रुपए है इनकम, तो वो 1 करोड़ कैसे बचा पाएगा और कैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना पाएगा? देखो, भी करोड़पति बनने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप केबीसी में जाओ, हॉट सीट पे बैठो और वहाँ करोड़ रुपए जीत लो। प्रोबेबिलिटी कम है बट ऑप्शन है आपके पास, पॉसिबल है। बट मेहनत बहुत लगेगा। करोड़ रुपए जीतने के लिए आपका जीके बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये मान लो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी जॉब करते हो, जहाँ पर भी आप एम्प्लॉयड हो, वहाँ पे देखो आप कि आप कैसे अपनी इम्पोर्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा सकते हो। और इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ेगी? आपको अपस्किलिंग करनी है। अपस्किलिंग करने के लिए आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करोगे तो अपने आप आपके सीनियर्स आपको देखेंगे और आपकी सैलरी हाइक जहाँ 8% होनी थी शायद 12% हो जाए। So this, I'll give you a live example, right? We have a client who is like 24-25 years old, and his salary, he got an increment of 120% this year. Wow. Just because he was extremely focused, right? Right. And he started working with us from day one. From the day he got employed, he started working with us. So now not only has a decent corpus, but he's also, his salary is way more than what I had at the age of 24-25. तो यही मैंने बोला कि मेन तो आपको सबसे पहले अपनी इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बेसिक एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कर्टेल नहीं कर सकते। तो वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाली इक्वेशन यहाँ वर्क नहीं करेगी। आपको अपनी इनकम पे ही वर्क करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कम करके आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं
तेल तिलों में से ही निकलेगा। तो जब तक आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं होगी, आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाओगे। तो चलो मान लिया अभी इनकम पे फोकस करना है और इनकम पे सैलरी से बढ़ा दिया, ठीक है, आई मूव्ड अप द कॉर्पोरेट लैडर एंड इट्स गोइंग टू टेक मी 3 to 5 years, बट एट द सेम टाइम मुझे कोई तो इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे बचाने, जो पैसे बचाए हुए हैं उसका मैं क्या कर पाऊंगा जिससे मैं 1 करोड़ जल्दी से जल्दी पा पाऊंगा, और जल्दी मतलब कितने साल? सो सी अगेन लाइक मैंने जैसे बोला, रिटर्न्स पे फोकस नहीं करना है अपने को। यू कैन ऑल्सो डू अ रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट पे कितना मिलेगा आज की तारीख में? 7.5-8%। इक्विटी में कितना मिलेगा? 10 से 12%। राइट। ठीक है, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। ये डिफरेंस कब मैटर करेगा? जब आपके पास पैसा है। ठीक है, तो पैसा नहीं है तो डिफरेंस विल नॉट मैटर टू मच। तो पहले तो अपने को अक्यूमुलेट करने पे फोकस करना है। ठीक है, इक्विटी ज़्यादा रिटर्न देता है तो यू स्टार्ट पुटिंग मनी इन इक्विटी, बट उससे पहले इमरजेंसी फंड रख लो, इंश्योरेंस देख लो कि इंश्योरेंस है कि नहीं है। बट आफ्टर दैट जितना भी बच रहा है, जस्ट माइंडलेसली पुट मनी इन इक्विटी। इक्विटी में भी कहाँ डालना है? व्हाट वी डू इज वी एंड अप ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड मेरा कोलीग क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शंस खरीद रहा है, ऑप्शंस बेच रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है। ये सब नहीं करना है। यू एंड अप लूजिंग लाइक 3-4 hours ऑफ योर डे इन दीज थिंग्स। सो ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट करोगे तो काम पे कहाँ ध्यान दोगे, राइट? तो खाली कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो और उसमें पैसा डालो, बस, एंड ऑफ स्टोरी। एंड डेफिनेटली 7-8-10 years कहीं तो पहुंचोगे। पहला 1 करोड़ रुपए अर्न करने के लिए ये नहीं जानना कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना। तभी आपका पहला 1 करोड़ रुपए इजीली बिल्कुल। अचीव हो पाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको अब कोई एंडोमेंट प्लान, कोई LIC पॉलिसी नहीं लेनी, आपको कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको कोई डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना। आपको बिल्कुल सिंपल जो चीज़ समझ में आती है आपको सिर्फ वही करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिक्स डिपॉजिट करो। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप रिकरिंग डिपॉजिट करो, आप PPF करो, आप अपना VPF में कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको इक्विटी मार्केट समझ में आती हैं कि ठीक है हर साल रिटर्न नहीं आएंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा, तो आप इक्विटी के अंदर भी कुछ पैसे डाल सकते हो।